Hello and good afternoon to all my dear students. I hope all of you are doing well. So welcome in the class of business studies. Today we will discuss the second part of chapter number 8. Chapter number 8 of your book is small business and entrepreneurship, right? We have already covered the first part that is related with entrepreneurship. We have already discussed the importance of entrepreneurship in the nation. We have discussed the process and we have also discussed about Startup India and IPR. Right now we have to discuss about small business. What is the meaning and concept of small business? How small business is useful for a nation? Why government is taking initiative to boost up the डेवलपमेंट लेवल ऑफ एसएसआईज इन अ नेशन. ये सारी चीजें हमें अभी पढ़नी है. तो देखिए सबसे पहले ये बता रहे हैं आपको स्मॉल एंटरप्राइजेस एग्जिस्ट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड. But in a developing country like India, small scale enterprises occupy a special place as there is scarcity of capital and abundance of labor. And small scale enterprises use labor intensive or capital saving techniques. ये आपको कह रहे हैं कि वैसे तो small business small businesses किए जाते हैं, लेकिन इंडिया जैसे डेवलपिंग नेशन में, इंडिया जैसी डेवलपिंग कंट्री में स्मॉल बिजनेस का रोल थोड़ा ज्यादा है. ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. क्यों? क्योंकि हमारे नेशन में लोगों के पास में कैपिटल कम और हमारे नेशन के पास में वर्कफोर्स ज्यादा है, राइट? तो ऐसे में इन अबंडेंस ऑफ लेबर फोर्स एंड इन शॉर्टेज ऑफ कैपिटल वी कैन start an industry which is labor intensive. Labor intensive means which use more and more labor, which use less machinery. तो हमें ऐसे ही बिजनेसेस को प्रमोट करना चाहिए. तो स्मॉल स्केल ऐसा ही बिजनेस है. अब देखिए ये जो डेफिनेशन हम पढ़ने वाले हैं ये इंडिपेंडेंस के जस्ट बाद की. मैंने आपको अपने फेयर रजिस्टर्स में करने के लिए क्वेश्चन भी दिया है. डिफाइन एसएसआई just after independence according to Industrial Development and Regulation Act. तो Industrial Development and Regulation Act ये यहाँ पे आपके लिए सेकेंड लाइन में नाम लिखा हुआ है. इस एक्ट के अकॉर्डिंग 1951 में any enterprise which employs not more than 50 persons when using power or 100 when not using power and with the capital assets not exceeding ₹5 lakh is defined as small scale industry. कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसमें अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है यानी कि इलेक्ट्रिकल मशीनरी यूज हो रही है तो मैक्सिमम 50 पीपल काम करेंगे. और अगर वो पावर यूज नहीं कर रहे हैं, अगर इलेक्ट्रिसिटी यूज नहीं कर रहे तो उनके पास मैक्सिमम 100 लोग काम कर रहे हैं और उनकी कैपिटल असेट्स 5 लाख रुपीस के अंदर अंदर है. 5 लाख से ज्यादा उन्होंने इन्वेस्ट नहीं कर रखा तो उसको हम एसएसआई की कैटेगरी में डाल रहे थे. कौन से ईयर के अकॉर्डिंग? 1951. क्या कर रहे थे हम? कोई भी ऐसी एंटरप्राइज जिसमें 50 से ज्यादा लोग काम नहीं कर रहे अगर इलेक्ट्रिकल मशीनें हैं तो, और 100 से ज्यादा काम नहीं कर रहे अगर मशीनें नहीं है तो, और उनकी मैक्सिमम कैपिटल है ₹5 लाख, तो वो इंडस्ट्री एसएसआई की कैटेगरी में आएगी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ 1951. फिर उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे मनी की वैल्यू कम हुई ये डेफिनेशन में जो कैपिटल असेट्स की अमाउंट थी वो एक्सीड होती गई. 59 में 60 में अलग अलग टाइम पे इस डेफिनेशन को रिवाइज किया गया. Now have a look. You have to learn the name of this act, MSMED Act, Micro Small Medium Enterprises Development Act. M for micro, S for small and M for medium. तो Micro Small and Medium Enterprises Development Act, or we can say only Enterprises Act also, which was passed in year 2006. It has given some new information about the SSI, micro, or we can say medium industries. Have a look. Basically, when a business is performed, two types of activities can be done. Activities related to production of goods and activities related with services, right? तो अगर आप goods manufacture कर रहे हो तो you will require more capital, और अगर आप services दे रहे हो लोगों को तो comparatively कम capital चाहिए होगी. Factories हैं, industries हैं आपकी, तो आपको ज्यादा पैसा चाहिए होगा क्योंकि आपको मशीनें चाहिए होगी. लेकिन अगर हम देखें कि आप एक सर्विस सेक्टर से बिलोंग करते हैं और आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपको कंपैरेटिवली कम पैसा चाहिए होगा. तो देखिए मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस और सर्विस एंटरप्राइजेस दोनों की अलग अलग डेफिनेशन. ये कह रहे हैं सीलिंग ऑन इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी, कितना इन्वेस्टमेंट करना है. माइक्रो इंडस्ट्री है अगर 25 लाख तक इन्वेस्टमेंट है
अगर आप प्रोडक्शन एंटरप्राइज है आपकी जो गुड्स मैन्युफैक्चर कर रही है और आपका इन्वेस्टमेंट 25 लाख तक है तो आपकी इंडस्ट्री है माइक्रो इंडस्ट्री। और अगर आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख तक है तो आपकी इंडस्ट्री माइक्रो इंडस्ट्री है। रिपीट कर रही हूँ, गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट कैपिटल 25 लाख तक है तो आप माइक्रो की कैटेगरी में हो। और अगर सर्विसेज है तो इन्वेस्टमेंट आपका 10 लाख तक है तो भी आप माइक्रो की कैटेगरी में हो। इससे ज्यादा आते ही आप स्मॉल में आ जाओगे। स्मॉल में वो आएंगी जहां कैपिटल मोर देन 25 लाख बट अप टू 5 करोड़ है। तो अगर आप गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हो 25 लाख से 5 करोड़ के बीच में अगर आपकी कैपिटल है तो आप स्मॉल की कैटेगरी में हो। और अगर आप सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हो तो 10 लाख से 2 करोड़ के बीच में आपकी कैपिटल होने पे आप स्मॉल इंडस्ट्री बन जाएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 5 करोड़ से 10 करोड़ तक है तो मीडियम मैन्युफैक्चरिंग में, और सर्विस में 2 करोड़ से 5 करोड़ के बीच में है तो मीडियम। इससे ज्यादा अगर आपके पास कैपिटल है तो आप लार्ज स्केल इंडस्ट्री के पार्ट माने जाओगे, यानी इससे ज्यादा कैपिटल होने पे आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री कंसीडर किया जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहे हैं, डू वेल इज मैन्युफैक्चरिंग unit to produce all kinds of school and office stationery such as pencil, pen, paper, notebooks, etc. in Gurgaon. The total investment of company in plant and machinery is 300. Identify the 3 crore. Identify the category into which this business will fall as per the MSMED Act. आप देखिए 3 करोड़ है, गुड्स मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट एंड 3 करोड़, तो डेफिनेटली स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। क्यों स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे? क्योंकि माइक्रो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट है लेकिन मीडियम से कम है। 5 लाख तक, 5 करोड़ तक का है तो आप स्मॉल की कैटेगरी में आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या कह रहा है ये टॉपिक, देखिए, रोल ऑफ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, या फिर हम कह सकते हैं रोल ऑफ स्मॉल बिजनेस इन रूरल इंडिया। रूरल इंडिया में स्मॉल बिजनेस क्या रोल प्ले कर रहा है ये हमें पढ़ना है। तो देखिए, सबसे पहले एम्प्लॉयमेंट। एसएसआई लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स को यूज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा वर्कर्स यूज करते हैं इन स्पाइट ऑफ मशीनरी। तो लेबर इंटेंसिव होने की वजह से ये मेन और वुमेन को एडिशनल जॉब्स प्रोवाइड करते हैं। एग्रीकल्चर के बाद अगर हम बात करें तो एसएसआई में सबसे ज्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इंडिया के लोगों की बात करें तो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज्यादा वर्क अगर उनको मिल रहा है तो वो वर्क उनको मिल रहा है एसएसआई से। तो एम्प्लॉयमेंट में देखिए क्या लिखा हुआ है इन्होंने आपके लिए, Small industries are labor intensive, so they provide additional employment to men and women. Next to agriculture, you have to highlight the sentence. Next to agriculture, small business contributes the most popular occupation of people in India. They also provide employment to agriculturalists who remain idle during a part of year. यानी एग्रीकल्चर के बाद अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जॉब्स कौन दे रहा है? स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज दे रही है। नेक्स्ट, अब आप देखिए फर्स्ट और सेकंड डायरेक्टली रिलेटेड है। इफ आई एम गिविंग यू जॉब, डेफिनेटली आई विल बी कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इंप्रूवमेंट ऑफ योर इकोनॉमिक कंडीशन। होगी कि नहीं होगी? जॉब मिलेगा तो सैलरी मिलेगी, सैलरी या वेजेस मिलेंगे तो डेफिनेटली इकोनॉमिक कंडीशन भी इंप्रूव होगी। तो ये यही कह रहे हैं पॉइंट में। By providing employment opportunities, the small scale industries provide more income to people living in rural areas, which improves economic conditions in villages. रूरल एरिया के लोगों के लिए मोर जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो वहां के लोगों की लिविंग कंडीशंस को इंप्रूव करता है, फाइनेंशियली इंप्रूव करता है। क्यों? क्योंकि उनकी इनकम्स बढ़ेगी, जब इनकम्स बढ़ेगा तो कंजप्शन और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी बढ़ेगा। फर्स्ट एंड सेकंड आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चलिए आगे देखिए, प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक एंड क्रिएटिव सेंस। अब देखिए, रूरल एरिया के लोगों में कुछ स्किल्स छुपे होते हैं। हर इंसान के अंदर कुछ स्किल्स होते हैं, कुछ क्रिएटिविटी होती है जो बाहर तभी आ पाते हैं जब उसको मौका मिलता है। तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज वहां के छोटे छोटे लोगों को जिनके अंदर कुछ स्किल्स है, कुछ टैलेंट है, उनको मौका देती है कि वो आए और अपने स्किल्स को यूज करके मनी अर्न करें, राइट। तो एसएसआई की वजह से वहां के लोगों के अंदर आर्टिस्टिक और क्रिएटिव सेंस डेवलप हो पाता है। तो देखिए क्या कह रहे हैं, स्मॉल बिजनेस सेटअप इन रूरल एरिया प्रोवाइड स्कोप फॉर प्रमोशन ऑफ आर्टिस्टिक अचीवमेंट एंड क्रिएटिविटी दैट हैज बीन सप्रेस्ड इन रूरल एरिया। रूरल एरिया के लोगों में जो क्रिएटिविटी और जो आर्टिस्टिक स्किल्स छुपे हुए हैं उनको प्रमोट करेगा कौन? एसएसआई, छोटी छोटी इंडस्ट्रीज।
आगे रूरल डेवलपमेंट, आप देखिए ये बहुत ही सिंपल है, एंटरप्रीनियरशिप एंड डेवलपमेंट दोनों में डायरेक्ट लिंक है। जितनी ज्यादा एंटरप्राइजेस सेटअप होगी उतना ज्यादा डेवलपमेंट होगा, और कहीं भी जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा वहां उतनी ज्यादा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बनेगी। क्या बोला मैंने? the more is the development of infrastructure, or we can say the more is the development of any particular area, there will be more opportunities for new entrepreneurs to come and start a business. And the more will be the business organizations, again government will provide more and more infrastructural facilities. दोनों directly related है, एक बढ़ेगा तो दूसरा अपने आप बढ़ेगा। बिजनेसेस सेटअप होंगे तो उनको इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा, अपने आप धीरे धीरे डेवलप होने लगेगा, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो अपने आप धीरे धीरे ज्यादा से ज्यादा इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश होने लगेगी, रिक्वायरमेंट जरूरत होगी लोगों को। तो देखिए ये वही कह रहे हैं रूरल डेवलपमेंट में ओवरऑल डेवलपमेंट। Small scale industries set up in rural areas leads to their development, which may result in rural reconstruction, sustained growth and removal of regional disparity. ये कह रहे हैं रूरल एरिया में जब इंडस्ट्रीज सेटअप होती है तो डेवलपमेंट होता है, ये डेवलपमेंट रूरल एरिया को वापस रिकंस्ट्रक्ट करने में हेल्पफुल होता है, ये वहां सस्टेन्ड ग्रोथ अचीव करवाता है आपको। सस्टेन्ड ग्रोथ यानी ऐसी ग्रोथ जो रिसोर्सेज को हार्म नहीं कर रही है, फ्यूचर के लिए भी रिसोर्सेज बचा के रख रही है। एंड बैलेंस रीजनल ग्रोथ, कुछ एरिया बैकवर्ड रह जाते हैं, अगर रूरल एरिया का आप डेवलपमेंट करोगे तो शायद लोगों का माइग्रेशन रूरल एरिया से अर्बन एरिया तक रोका जा सकता है। Last but not the least, mobilization of local resources. Mobilization word here means movement. In the absence of small business, people would have saved their amount in their homes. Only the amount with themselves is not useful for the nation. So when small scale enterprises are set up, people have started investing their limited amounts in business. और जब पैसा घर से निकल के business तक पहुंचता है तो वो पैसा अपने आप को multiply कर देता है, right? You as the student of commerce already know कि पैसा जब तक इकोनॉमी में रोटेट नहीं होगा तब तक इकोनॉमी नहीं चल सकती। तो वो पैसे को इकोनॉमी में लाना, उस पैसे को रोटेट करवाना स्मॉल स्केल बिजनेस की वजह से भी बढ़ पाया है। देखिए क्या कह रहे हैं, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज फैसिलिटेट मोबिलाइजेशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ लोकल रिसोर्सेज which might otherwise remain unutilized. ऐसे local resources जो otherwise use ही नहीं होते, अगर small scale business नहीं होता तो उनका कोई काम ही नहीं होता, वो resources use ही नहीं होते, उन resources को भी small scale entrepreneur utilize करवाते हैं. This helps in tapping resources like entrepreneur skill and small savings, especially in rural area. Rural area में अलग अलग रिसोर्सेज जैसे एंटरप्रीनियर स्किल्स हो गए, छोटे छोटे लोगों की थोड़ी थोड़ी सेविंग्स हो गई, ये सारी चीजें यूटिलाइज होने लगती है। तो 5 पॉइंट है, फर्स्ट एंड सेकंड आर डायरेक्टली रिलेटेड, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जनरेट होंगी एंड पीपल will be able to maintain a good standard of living due to their improved economic condition. Then there will be promotion of artistic and creative sense, and there will be development of rural area. And last, mobilization of local resources, where mobilization means movement of local resources. Our next topic will be related to the support provided by government to SSI. Government ने कैसे small scale enterprises को क्या क्या support provide किया, ये हम पढ़ेंगे। उससे पहले देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस टॉपिक डिस्कस किया है यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखिए, द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम दिस चैप्टर, दिस पार्ट ऑफ चैप्टर कैन बी द मीनिंग ऑफ एसएसआई एज पर द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1951. देन फुल फॉर्म ऑफ एमएसएमईडी कैन बी आस्क्ड. देन आफ्टर यू हैव टू लर्न दिस फ्लो चार्ट. You have to learn the limit of investment for small, medium and micro industries, both in manufacturing enterprises as well as in service enterprises. You can be asked with the help of a case study the amount of investment required by different industries of different parts. So you must learn this part, and then after a simple question
Role of SSI in rural India, directly it can be asked in 5 marks, and in 1 or 2 marks it can be asked how SSI promotes employment opportunities, how SSI contributes in rural development, how it increases या improves the economic condition of people. कोई भी एक पॉइंट आपको अलग से 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो यू मस्ट बी एबल टू राइट द मैटर ऑन योर ओन। आपको पता होना चाहिए कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है, आपको पता होना चाहिए कि कैसे ये एंटरप्राइजेस रूरल डेवलपमेंट कर रही है। यू शुड नो हाउ मोर एंड मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज रिजल्ट इन इम्प्रूविंग द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ पीपल। तो आपको ये सारी चीजें बहुत बढ़िया तरीके से आनी चाहिए, राइट। आगे देखें, बस ये थोड़ा सा पार्ट कर रहे हैं, सपोर्ट हम स्टार्ट नहीं करेंगे, सिर्फ इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट रीड कर रहे हैं आज, बाकी हम करेंगे कल की क्लास में। देखिए ये क्या कह रहे हैं, गवर्नमेंट असिस्टेंस एंड स्पेशल स्कीम्स फॉर इंडस्ट्रीज इन रूरल बैकवर्ड एंड हिली एरियाज। गवर्नमेंट क्या स्पेशल स्कीम्स ला रही है रूरल बैकवर्ड और हिली एरिया की इंडस्ट्री के लिए? तो देखिए क्या लिखा हुआ है, keeping in view the contribution of SSI to employment generation, balanced regional growth and promotion of export, the Government of India has formed various policies and offered various incentives and benefits for growth and promotion of small scale business at central as well as state level. ये कह रहे हैं पहले तो आपको पता होना चाहिए गवर्नमेंट सपोर्ट कर क्यों रही है। गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है क्योंकि एसएसआई नेशन में एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहा है, एसएसआई किसी भी नेशन का बैलेंस रीजनल ग्रोथ कर रहा है, एसएसआई की वजह से कंट्री में एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि इनका पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है हमारी इकोनॉमी में, इसलिए गवर्नमेंट सेंट्रल और स्टेट लेवल पे इनके प्रमोशन के लिए काम कर रही है, इनकी ग्रोथ के लिए काम कर रही है, राइट। सॉरी, now the support of government is translated into action through various agencies, departments and corporation. अलग अलग एजेंसीज, अलग अलग डिपार्टमेंट्स और अलग अलग कॉर्पोरेशंस की हेल्प से एग्जीक्यूट किया जा रहा है, ठीक है। कुछ सपोर्ट प्रोग्राम जो है वो स्मॉल और रूरल इंडस्ट्रीज के 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिए गए हैं, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट्स एंड इंसेंटिव्स ऑफर्ड बाय गवर्नमेंट टू एसएसआई। इंस्टीट्यूट बनाई गवर्नमेंट ने कुछ और उससे सपोर्ट किया। हमारे सिलेबस में वी हैव टू डिस्कस अबाउट 2 इंस्टीट्यूट्स, एनएसआईसी एंड डीआईसी, जो हम करेंगे कल, और कुछ गवर्नमेंट ने डायरेक्ट इंसेंटिव्स दिए एसएसआई को, ये भी करेंगे कल। बस ये 2 टॉपिक करते ही आपका ये चैप्टर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो आपका टास्क है यहाँ तक प्रिपेयर करना, लर्निंग करना एंड टू डू द क्वेश्चन आंसर्स इन योर रजिस्टर्स। टिल दैट हैव अ नाइस डे, एंजॉय योरसेल्फ।